देखो आज तक हमने क्या पढ़ा डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने आपको पहले बताया था सादिया, वी डिड स्टडीड द डिफेंस मैकेनिज्म और ऑफ द टू टाइप्स, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस एंड स्पेसिफिक डिफेंस, राइट। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस हमने पढ़ा था एक्सटर्नल डिफेंस, दैट इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस वी हैव स्टडीड द second, right? We have studied the second. And the internal defense. And the internal defense, we have studied in it the different types like the lymphocytes, interferons, inflammation. These type is the second line of the defense that reacts with the pathogens that tries to enter our body. First, it is stopped by the second, and it is fluid producing like the sweat, like the wax, like this sweat, wax, and etc. These pollutants do help in the preventing us to enter into the pathogen. Second thing is second life defense, that the interferons, lymphocytes, natural killer cells. Yesterday we have studied the complementary proteins that help us to fight against these pathogens. If any pathogen has crossed all these barriers, please, Sadia, remember, if any pathogen has crossed all the barriers, it has crossed the skin, it has crossed all the digestive enzymes, it has crossed this the sweat, it has crossed the wax, right? Isn't it? And all these things, when it crosses, it reaches towards body. There is the lymphocytes have attack on it, the interferons had attack on it, complementary proteins had natural killer cells had attack on it. And when all these things were not successful, now there is the second, that is the second line of the defense today. Saja, this is the second line of defense. Second line of third line defense. This was the first line, external defense, internal defense, lymphocytes, interferons, and these natural killer cells. And the third line of the defense. This is the specialized response of the body to fight with the pathogens. This is a pile defense. If any pathogen passed this defense also, then there is the very much the body will be vulnerable that it will be infected by the disease. Right? Understand? Right. यानी अब तक हमने समझ में आया सारे, प्लीज रेस्पॉन्ड। एक्सटर्नल डिफेंस, इंटरनल डिफेंस, ये दोनों समझाए रुफैदा, सीरत, हया, गैलेक्सी। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स? सादिया, अब तक समझ में आया ना? सादिया, अब तक समझ में आया ना? सादिया, सादिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। देखो, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में दो चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी। दो चीजें प्लीज अंडरस्टैंड इट, हैव अ फुल कंसंट्रेशन सादिया टोल्ड मी। वन इज द एंटीजन and second is the antibodies. This is the third line of defense, the antibodies that act against the pathogens. We have to understand all these things, and this comes under the third line of the defense, final and the third line defense, that is the antibody. But before that antibodies, going to the antibodies, we have to understand the antigens. What are the antigens, right? We will write it Sadia, having full antigens. What are antigens? Understand it. Any foreign substance, right? Any foreign substance that stimulates our immune system. Any foreign substance that stimulates our immune system means an antigen. यानी कोई भी फॉरेन चीज अंदर चला जाए और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, दैट मीन्स एन एंटीजन। मैंने बताया आपको, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस
in the third line of defense, we have to understand the antigen and the antibodies. First of all, we will take the antigens. Antigen definition means the any foreign substance that is unrelated to body. Please understand it here. That is unrelated to body. Any foreign substance that is unrelated to body. For example, Sadia, we'll take the inside the oxygen. If the body thinks that this is an external, this is an foreign substance, then this oxygen will not work in our body. But this should be unrelated to our body. Any substance that is unrelated, that is not acceptable to our body, means the antigen. राइट इंटीजन की अगर हम अंडरस्टैंड कर देंगे इंटीजन को अगर हम अंडरस्टैंड कर देंगे दिस मीन्स इसका मतलब ही ये है एंटी मीन्स द एंटीबॉडी राइट एंड जेन मीन्स राइट व्हाट प्लीज टेल मी Sadia, are you getting me? Sadia, are you getting me? Right. Sound is coming from your side. That is why I told you. Is there any doubt? Right. Antibody, anti means the antibody, and gen means the generating material. Right. It means the antigen generating material. Antibody generating material. Antigen means the antibody generating material. मैंने इसकी definition बताई. Any foreign substance that stimulates our immune system, जो हमारी immune system को activate करेगा, that is an antigen. Right? अगर हम एक antigen की बात ले लेंगे, अगर हम antigen, मैंने बताया foreign substances. This is the foreign substance. What is its qualification? For example, this is the pathogen. I am writing it here. Understand it. This is the pathogen. Understand it also. Sadia, Rufaida, are you getting me? Right? Understand करो ये पैथोजन है हाँ इसमें दो चीजें होती हैं बॉडी इसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि दिस इज एन इंटीजन मैंने कहा कि इंटीजन की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए दैट इज अनरिलेटेड टू बॉडी दैट इज अनरिलेटेड टू बॉडी ये आइडेंटिफाई इम्यून सिस्टम करना चाहिए कि दिस इज द एनिमी टू द बॉडी मैंने बताया एक एग्जांपल मैंने दे दी हम ऑक्सीजन ले ले दिस इज द फॉरेन सब्सटेंस बट इट इज रिक्वायर्ड टू द बॉडी इफ द एंटीबॉडीज विल अगेंस्ट इट द ऑक्सीजन सो द बॉडी विल नॉट रिमेन देयर so the antibodies have not act against those that are fronts towards the body it is only that our foes are the enemies to the body and how did they identify the enemies for example this is the pathogen this is the pathogen this pathogen has two things in it on which basis the body identifies that this is the pathogen right one marker on it is that is the antigen component the substance the marker is on the body the marker is on the body that presents to the body that it is an antigen component second substance मैंने यहां बताया this is an antigen determinant 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 so the body which has to identify that the pathogen is unrelated to body it determines it identifies it with the two markers that is on the antigen one is that it has a marker on its skin on its outer skin that is the antigen component and the second marker is on it that is an antigen determinant by these two things our body identifies that this is an antigen
एंटीजन को इस तरह से आप साझा वो करते हैं। देखो जितने भी वैक्सीन्स आ रहे हैं, जितने भी वैक्सीन्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द पोलियो वैक्सीन इज, हेपेटाइटिस सी वैक्सीन इज, all those vaccines, what are these vaccines inside to it? They are the antigens. They are the antigen. Antigens means that it deactivated pathogen. Deactivated pathogen. They are present in the body, the antigen component and the antigen determinant. They are they are presenting the antigen determinant and the antigen component. Right? This means the body will identify that the pathogen is the external substance. It is the foreign substance. Sadia, I hope you understand. Rufaida, Galaxy M0, Rufaida, understand? जरा रिपीट कीजिए इसको. Repeat. एंटीजन पे 2 मार्क. Right, very good. एंटीजन पे 2 मार्कर्स होते हैं. एक इसके सीक्वेंस होता है, इसे हम एंटीजन कंपोनेंट कहते हैं और दूसरे को एंटीजन डिटरमिनेंट कहते हैं. इंटरजन डिटरमिनेंट कहते हैं. हाँ, रिपीट कीजिए, इंटरजन को डिफाइन कर दीजिए. वेरी गुड. वेरी गुड. इंटरजन. सर एनी पॉइंट. Very good. That is called an antigen. Meaning क्या होता है? Very good. Very good. Go on. Antigen, antibody generating. Very good. Generating material. Very good. मैंने पता ये markers अगर आप यहाँ understand करेंगे, this is the diagram from your NCERT. These are the markers and these represent the antigen component and antigen determinant. And intelligent. This it has shown this is an antibody and this will bind to it and will kill it. ये आगे पार्ट देंगे हम. हाँ, एंटीजन के प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? बॉडी विल आइडेंटिफाई दिस इज एन एंटीजन. फॉर दिस पर्पस देयर शुड बी द प्रॉपर्टीज, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज फॉर द एंटीजन. इसका क्या होता है? इट शुड हैव एन हाई मॉलिक्यूलर वेट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई मॉलिक्यूलर वेट. क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए पहले? हाई मॉलिक्यूलर वेट. हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इम्यूनोजेनिसिटी. Immunogenicity means that the antigen should stimulate the antibodies to act against it. Pehla, the antigen should have a high molecular weight. Second, the property of an antigen should be that it has the capacity to induce an immune reaction. यानी ये स्टिमुलेट करना चाहिए एंटीबॉडीज को रिएक्ट करने के लिए. दिस विल बी सेकंड प्रॉपर्टी. वेरी इंपॉर्टेंट, नीट इंपॉर्टेंट. What is the immunogenicity? The capacity of an antigen to induce the immune reaction. And the third property, it should have an reactivity. Reactivity यानी पहला हाई मॉलिक्यूलर वेट, इम्यूनोजेनिसिटी, द कैपेसिटी ऑफ एन एंटीजन to induce an immune system, right? To induce an immune reaction. Third, reactivity. The antibodies should react with the antigen. कितने प्रॉपर्टीज होगी? रुफायदा कितनी प्रॉपर्टीज होगी? M21, M02. रुफायदा कितनी प्रॉपर्टीज हुई? कौन कौन सा? रिएक्टिविटी क्या मतलब हुआ? Right. Antigen should have the capacity to react with the antibodies.
टू रिएक्ट, ये अंडरस्टैंड हम अभी कर रहे हैं। और चौथी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड बी अनरिलेटेड विद द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी बताया अनरिलेटेड विद द बॉडी, इट शुड बी अनरिलेटेड। ये ऐसा कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए जो बॉडी को हेल्प कर देगा, ऐसे चीजों पर अटैक कर देगा एंटीबॉडीज, तब तो फायदा कोई नहीं है एंटीबॉडीज का। 4 properties very important. Antigen will be identified, it should have a high molecular weight. Second, immunogenicity, the capacity of an antigen to induce the immune reaction. Third, reactivity, the antigen should have the capable to react with the antibodies. Third, unrelated to the body, it should not relate to the body, it should only be the enemy of the body. This should be the properties of the antibody, then the body will react against it if these 4 properties are there. Right? Right? Understand? 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 रुफायदा, गैलेक्सी आप भी थोड़ी बात कीजिए। गैलेक्सी, सॉरी रुफायदा, क्या क्या मैंने बताया? properties of इंटीजन कौन कौन सा होना चाहिए? high molecular immunogenicity, reactivity, and also unrelated to the body होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटीजन के 2 काइंड्स हैं। Integer has 2 kinds. One is the complete integer. One is the complete integer. हाँ, complete integer किसको बताते हैं? जिसके पास reactivity and immunogenicity हो। Reactivity and immunogenicity, इसको complete यानी ये 3 चीजें होनी चाहिए। ये 3 चीजें होनी चाहिए। This means the complete integer. Integer has 2 kinds. The complete integer means that when the integer has the immunogenicity and reactivity, when the integer itself has a capability to induce the immune reaction. Second, it has the capacity to react with the antibodies, and that integer is known as a complete integer. Incomplete integers भी होते हैं, कुछ incomplete integers that are required for our scientific purpose. Sometimes the incomplete integers are introduced into our body, but how they become the complete? They interact with the proteins of the body. They interact with the proteins of the body and they then form the complete integers. So we can say that there are the two kinds of the integers. One is the complete integers, the integers that have the immunogenicity and the reactivity. These are the complete integers. And the second incomplete integers, those integers that do not have they are non-proteinous. This is very important. They are non-proteinous. Integers क्या होते हैं? Integers क्या होते हैं? They are the proteinous. They are the proteinous. क्या होते हैं वो? Proteinous होते हैं वो। तो अगर ये इनमें 2 properties नहीं होगी, तो this means that they are the non-proteinous, and this means that incomplete integers. Understand it here. Understand it here. Integers 2 kinds के होते हैं. One is the complete integers that have the reactivity and the immunogenicity. This means the complete protein. Incomplete integers means that which do not have these functions and are non-proteinous. अब ये क्या करते हैं? बॉडी में लेके वहां से बाइंड करते हैं प्रोटीन एंड देन दे फॉर्म दे कंप्लीट इंटीजर्स। हाँ, जरा बताइए रुफायदा, साजा क्या हो गया आपको मोबाइल को? व्हाई यू आर लेफ्टिंग?
हाँ, जरा रुफायदा इसको रिपीट कीजिए, सादिया भी सुन लेगी। टू काइंड्स ऑफ एंटीजन होते हैं, कंप्लीट एंटीजन एंड इनकम्प्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन हम उससे कहते हैं जिस एंटीजन में इम्यूनोजेनिसिटी एंड रिएक्टिविटी हो। वेरी गुड। इनकम्प्लीट एंटीजन हम उससे कहते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टीज ना हो और वो नॉन प्रोटीनियस हो। नॉन प्रोटीन, वो बॉडी में जाके प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाते हैं, फिर ये कंप्लीट। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ। ओह वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। इनको ये इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को वेरी इंपॉर्टेंट रुफायदा, नीट इंपॉर्टेंट, इनको हेपेटेंस भी कहते हैं, हेप्टेंस भी कहते हैं। यहाँ मैं लिख दूंगा हेप्टेंस, HAPTENS। ये भी कभी कभार जरूरत होते हैं साइंटिस्ट को, ये भी कभार इंड्यूस करने, इंटीजेंस इंड्यूस करने के लिए, वैक्सीन इंड्यूस करने के लिए इनकम्प्लीट इंटीजेंस इंड्यूस करते हैं, एंड दीज आर नोन एज हेप्टेंस। आई एम राइटिंग इट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, हेप्टेंस। Understand? 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 Yes, sir. Shabash. Sadia, did you understand Yes, sir. the time you have left from the session? Did you understand what else we have studied after this time? हाँ, अब रुफैदा, सादिया, अब रुफैदा, ये मैंने बताया कि कंप्लीट प्रोटीन जो इंटीजेंस होते हैं ये प्रोटीनिस होते हैं, तो इनकम्प्लीट प्रोटीन नॉन प्रोटीन्स होते हैं। वो किसके बनी हुई होते हैं फिर? आइदर दीज आर द पॉलीसैचराइड्स और ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। हेप्टानस या पॉलीसैचराइड्स होते हैं या न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और बॉडी में जाकर ये अपने साथ प्रोटीन मिला के कंप्लीट प्रोटीन बनते हैं। तीन चीजें, आई एम रिपीटिंग इट। The indigenous are of the two kinds. Sadia, remember it. You have left the session. Indigenous are of the two kinds. Complete proteins. These are the proteins in nature and have the property of the immunogenicity and reactivity. They are proteinous and have the property of the immunogenicity and the reactivity. Right? Second is the incomplete proteins. They are non-proteins made up of the polysaccharides or the nucleic acids or the nucleic acids. They enter into the body and get tied with the proteins, then they form the incomplete proteins, then they form the complete proteins, right? देखो, इस प्रोटीन्स में आपको देखा सारे, यहाँ पर देख लेना आप, ये जो यहाँ पर मैंने मार्कर्स बता दिए, यानी इंटीजन कंपोनेंट एंड इंटीजन डिटरमिनेंट। Antigen component means that the antibodies or body is identifying that this is an antigen. This is the foreign substance and it is not a foreign to the body. अब इसका इंटीजन डिटरमिनेंट क्या होता है कि वो पार्ट, इंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ फिक्स हो जाएगा, वो मार्कर एंटीबॉडी का जो एंटीबॉडी के साथ फिक्स हो जाएगा, एंड दैट मार्कर इज व्हाट इज नोन एज ए, इट इज नोन एज ए एपिटॉप। इट इज नोन एज एन एपिटॉप। वही वाला, वही इंटीजन डिटरमिनेंट, वो मार्कर जो फिक्स होता है एंटीबॉडी के साथ। जी, दिस इज एन एंटीबॉडी। यहां पर इसने जगह रखी है दिस लॉक एंड की मेथड के जाए, ये मार्कर आ जाए, डिटरमिनेंट आ जाएगा और इसके साथ फिक्स हो जाएगा। सो इट मीन्स दैट इट इज द एपिटॉप, द प्लेस ऑफ द इंटीजन, द पार्ट ऑफ द इंटीजन दैट विल फिक्स इनटू द एंटीबॉडी, that will fix into the antibody, and this is the antigen determinant or it is known as the epitope. The place where the antibody fixes the antigen, दो चीज है, the place where the antibody fixes the antigen, that is known as a paratope. दो चीजें मैंने बताई थी आपको कि इंटीजन में दो चीजें होती हैं, इंटीजन कंपोनेंट एंड इंटीजन डिटरमिनेंट। इंटीजन कंपोनेंट डिफाइन्स दैट दिस इज द एनिमी टू द बॉडी। इंटीजन डिटरमिनेंट ये डिफाइन करता है कि इसके पास वो साइट मार्कर है दैट विल फिक्स इनटू द एंटीबॉडी।
दैट विल, ये एंटीबॉडी पढ़ लेंगे हम, ये वाई शेप्ड होती है। हाँ, दैट इज द मार्कर दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीबॉडी एंटीजन एंड दैट फिक्सेस इनटू द एंटीबॉडी, दिस इज नोन एज एपिटॉप। The place on the antibody where the antigen fixes, that is known as a paratop. That is known as a paratop. सादिया ऑन कर लो अपने ऑडियो को। अंडरस्टैंड कौन कौन से चीजें एंटीजन और एंटीबॉडी में होते हैं, मार्कर्स क्या होते हैं इनमें? एक मार्कर जो फिक्स होता है, फिक्स विद एंटीबॉडी, हाँ, उसको हम बोलते हैं एपिटोप। और प्लेस होता है जो एंटीबॉडी पे, जहाँ प्लेस और एंटीबॉडी इट फिक्स विद एंटीजन, उसको हम पेराटॉप बोलते हैं। वेरी गुड सादिया, इसीलिए हम वेट कर रहे थे आपका। रुफायदा, डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सादिया, एक्सीलेंट सादिया। देखो, ये मैंने इंटीजन बताया, इसके डिटरमिनेंट बताया, इसका कंपोनेंट बताया, इसकी प्रॉपर्टी बताइए कि बॉडी कैसे आइडेंटिफाई करेगा दिस इज एन एनिमी, दिस पैथोजन इज एन एनिमी। इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? 3-4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इसमें। हाई मॉलिक्यूलर वेट, इम्यूनोजेनिसिटी, reactivity unrelated to the body. हाँ, reactivity and the immunogenicity which are proteins are known as the complete antigens. Non-proteins which are made up of the polysaccharides or the nucleic acids, they are known as the incomplete antigens and they are also known as the heptons. These are also अभी आपने एपिटॉप एंड पैराटॉप भी सुन लिया। अब ये काम कैसे कर रहा है? द मैकेनिज्म आप देखना है साजा, अंडरस्टैंड इट, मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। देखो, हमारी बॉडी में मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, नोट करना इसको, इंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इंटीजन अभी जब हमारा फायरन बॉडी आया, उसने फर्स्ट लाइन डिफेंस क्रॉस कर दी, सेकंड लाइन डिफेंस क्रॉस कर दी और थर्ड लाइन डिफेंस पे पहुंच गया। ये वहां पर क्या करेगा? हमारे पास 4 टाइप्स डिफेंस के मैकेनिज्म के होते हैं। वन इज द मैक्रोफाजेस, आई एम राइटिंग इट, मैक्रोफाजेस। One is the macrophages, second is the B lymphocytes, and the third, one, two, and third is the dendritic cells. अंडरस्टैंड करना अच्छी तरह से इसको। हमारे पास 3 तरह के इंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। कौन कौन से? मैक्रोफाजेस जो हमने पढ़े थे, मैक्रोफाज हमने पढ़े थे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ये क्या करते हैं? जब ये पैथोजन ये 2 लाइनें क्रॉस कर दी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस कर दी, अब ये फॉर एग्जांपल हम यहां बनाए थे दिस इरेगुलर शेप ऑफ द मैक्रोफाज, दिस इज द पैथोजन एंड दिस मैक्रोफाज हैज a property, it is phagocytic. Phagocytic means it engulfs the foreign substance. It engulfs the foreign substance. जब इसने इस phagocytic नेचर के इसने इस पैथोजन को अपनी बॉडी में ले लिया। यहां पर क्या होता है आपको पता है, सेल में एक सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, राइट? लाइसोसोम, ये लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम इस पैथोजन को इनगल्फ करके वहां पर टुकड़े कर दिया। दिस हैज द डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी, this has the digestive property. Lysosome you have understand during the last yesterday of the cell studies, lysosome की ये property होती है that has the digestive property। और इसने जब foreign body देखा, इसको engulf करके इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसके टुकड़े यहां पर मैंने इसके फॉर एग्जांपल टुकड़े, इस पैथोजन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं इंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इंटीजन ने जब 3 चीजें क्रॉस की, 2 डिफेंस लाइनें क्रॉस की, तीसरी डिफेंस लाइन पर पहुंच गया, वहां पर 3 सेल्स का काम है, मैक्रोफाज, बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। जब हमने एक एग्जांपल दी मैक्रोफाज की, एक पैथोजन आ गया, उसने इंटर कर दिया, ये इंटर कर दिया बॉडी में, अब ब्लड के पास पहुंचा, मैक्रोफाज आ गया और इसने इसको खा लिया। ये क्या था कि जो भी कोई आएगा
करेगा फॉरेन बॉडी, इसको हम खा लेंगे। इसने खा लिया, इसको टुकड़े-टुकड़े कर दिए। मगर बॉडी का अब ये मामला है कि बॉडी के पास और ऐसे पैथोजेन्स आएँगे, उसके लिए तैयार होना चाहिए। इसको तैयार होने के लिए इसको क्या करना है? इसको एंटीबॉडीज़ बनानी है। इसको क्या बनानी है? एंटीबॉडीज़। जब इस माइक्रोफाज ने इसको एनगल्फ कर दिया, लाइसोसोम ने इसको ढेर कर लिया आगे और इसको क्या कर दिया है? इट ब्रोक इट इंटू द पीसेस। जब इसने इनके ब्रोक कर दिया पीसेस में, हमारे हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पर हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पर एक किस्म का प्रोटीन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द नीट, वेरी इम्पोर्टेंट। दीज आर नोन एज ए MHC। MHC, मेजर हेपेटोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। MHC, मेजर हेपेटोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये ऐसे प्रोटीन्स हो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पर। इनके जो जो ये टुकड़े बनते हैं, इनके साथ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बता दूंगा MHC, और इसका दूसरा नाम भी है, याद रखना इसका HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और MHC मेजर हेपेटोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हेपेटोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। साजिया इसको रिपीट कीजिए, इन दो चीजों को, HLA एंड MHC। सर MIC की फुल फॉर्म मेजर हेपेटोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और दूसरा नाम HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। हाँ, साजिया रुफैदा, अगर टाइम खत्म हो गया इसको खत्म कर ले, इंटीजन को खत्म कर लेंगे आज, फिर इंटर कर देना साजिया, ठीक है ना? ठीक है ना साजिया? यस सर। राइट, अगर टाइम खत्म हो गया। यस सर। हाँ, जब ये इसको माइक्रोफाज ने इसको इनगल्फ कर दिया, वहां पर इसने लाइसोसोम ने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं इसके बाहर दिखाता हूँ अब जब इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए इसने, क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े जब इसने कर दिए, तो क्या होता है? वहां पर ये MHC, जैसे ये होते हैं MHC, ये इन टुकड़ों के साथ मिल जाता है, इस तरह का। इस तरह ये बनाते हैं ये बॉडीज़, और इसके अंदर जब ये बनाते हैं बॉडीज़, तो ये मैक्रोफाज के बाहर आ जाते हैं। ये मैक्रोफाज के बाहर आ जाते हैं, जैसे इस तरह बैठते हैं ये। मैकेनिज़्म अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना। एंटीजन आ गया, इसको मैक्रोफाज ने एनगल्फ कर दिया, मगर एंटीजन ने 2 डिफेंस लाइनें क्रॉस की थी। सिकन भी क्रॉस किया था इसने, स्वेटिंग भी क्रॉस किया, वैकस भी क्रॉस किया, सोडिफेरस ग्लैंड्स के, सेबेशियस ग्लैंड्स भी क्रॉस किए इसने, टीयर्स भी क्रॉस किए, एवरीथिंग इट हैज क्रॉस्ड। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, लिम्फोसाइट्स इसने क्रॉस किए थे, इंटरफ्रॉन्स क्रॉस किए थे, नेचर किलर सेल्स इसने क्रॉस किए थे। अब ये पहुंच गया ब्लड में। ब्लड में क्या किया? मैक्रोफाज ने इसने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसको मैंने बताया मैक्रोफाजेस, बी लिम्फोसाइट्स एंड द डेंड्राइटिक सेल्स। मैक्रोफाज ने इसको इनगल्फ कर दिया, लाइसोसोम ने इसको टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करके इसको कहां से मिला दिया? MHC के साथ मिला गया, और ये जैसे फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए। ये फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर्स मैक्रोफाज के बाहर आ गए, मैक्रोफाज के बाहर आ गए। इन पर क्या लगा हुआ है? एक तो लगा हुआ है टुकड़ा, किसका टुकड़ा लगा हुआ है? इस पैथोजन का टुकड़ा, और दूसरा MHC का ये फ्लैग डंडा लगा हुआ है। तो ये बाहर इसके मैक्रोफाज खड़ा हो गया। अगर आप रुफैदा सुन लेंगे, इसी प्रोसीजर के साथ ये वैक्सीन भी बनते हैं। वो भी किसी एंटीजन, किसी पैथोजन को कट करते हैं, कोरोना वायरस को कट कर दिया, इसको इनएक्टिव कर दिया, पोलियो वायरस को कट कर दिया, हेपेटाइटिस वायरस को कट कर दिया, या इनएक्टिव कर दिया, या मार दिया, सो दैट बॉडी कैन आइडेंटिफाई इट इज माय एनिमी, तो वो एंटीबॉडीज बना दी गया। इसी यही प्रोसीजर यहाँ पर हमारी बॉडी में बनता है। माइक्रोफाज ने इसको बाहर खड़ा कर दिया, और जब इसको बाहर खड़ा कर दिया, क्या कर दिया? तो ब्लड में टी हेल्पर सेल्स होते हैं, जो हमने पढ़े थे, टी हेल्पर सेल्स, जिस पर HIV अटैक करता है। ये हेल्पर सेल्स क्या काम करते हैं? हेल्पर सेल्स इसको क्या काम है? इसके इनगल्फ कर देते हैं।
क्या करते हैं, इस एंटीबॉडी इस पैथोजन की इस टुकड़ी को इनगल्फ करते हैं, और जब ये इनगल्फ करते हैं, और जब इसको इनगल्फ करते हैं, इट हेल्प्स द रिएक्शन इज दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, द सब्सटेंसेस आर फॉर्मड, दैट इज एन एंटीबॉडी, दैट इज एन एंटीबॉडी। प्रोसीजर समझ में आया आपको सादिया? प्रोसीजर समझ में आया? Yes, sir. कैन यू रिपीट इट सादिया? अगर टाइम मैंने खत्म कर दिया, इंटीजन मैंने जल्दी से खत्म कर दिया, अब आप रिपीट कीजिए सो दैट आई विल अंडरस्टैंड यू हैड टुमारो वी विल स्टडी द एंटीबॉडीज। इसको रिपीट कीजिए कैसे ये सेकंड लाइन डिफरेंट सेकंड लाइन क्रॉस करते थर्ड लाइन पे क्या होता है, इसको रिपीट कीजिए। इसको रुफायदा रिपीट कीजिए इसको। रुफायदा रुफायदा रिपीट। सर जब ये फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन डिफरेंस को क्रॉस करके थर्ड लाइन में आता है, तब ये ब्लड में होता है और इन सेल्स को क्या कहते हैं? इन सेल्स को क्या कहते हैं? हाँ, ये 3 सेल्स हैं, मैंने बताया, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। हाँ सादिया, आप जल्दी से बताओ, जल्दी 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 से, टाइम खत्म होने वाला है। सेल्स है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक मैक्रोफेज और बी लिम्फोसाइट्स और तीसरा ये तो मैक्रोफेज वो इनको ब्रेक डाउन करता है और इनको करता है। उसके बाद इन्होंने मतलब फर्स्ट लाइन डिफेंस और स्किन जैसे हमारी रिस्पेक्ट ग्लैंड सब इनको क्रॉस करके ब्लड में पहुंच गया होता है पैथोजन। इसके बाद ब्लड में जो ये मैक्रोफेज है इसको एंगल्फ करता है और इसके बाद ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के साथ अटैच हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे फॉर्म होता है जो फिर को एंगल्फ करते हैं और वहां पर क्या बनते हैं रुफायदा? एंटीबॉडीज बनते हैं। क्या बनते हैं वहां पर? राइट, एंटीबॉडीज। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ रुफायदा, आपने एक गलती की है। दीज आर द काइंड्स ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। मैंने बताया था आपको, मैक्रोफेजेस के 2 काइंड्स के होते हैं, वैंडरिंग एंड फिक्स्ड। फिक्स्ड व्हेन दे आर इन ए बॉडी, फॉर एग्जांपल इन द किडनीज, इन द लंग्स, इन द स्टमक, दीज आर द फिक्स्ड। वैंडरिंग मीन्स व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, राइट? Understand? Did you understand the intelligence? Is there any doubt? Is there any doubt? Is there any doubt? I will explain it again. Is there any doubt? हाँ, क्या डाउट है? प्लीज बताइए मुझे, क्या डाउट है, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। कुछ नहीं है, ठीक, समझ में आया ना? बात समझ में आई? बात समझ में आई? Yes, sir. Very good. Shall I call up the session?